जय हिंद एवरीवन, आई एम एनो प्रीति स्वामी फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ डायरेक्टरेट। आप सभी का स्वागत करती हूँ RDC 2026 के इस बिहाइंड द सीन एपिसोड में। यहाँ पर होंगे बिहाइंड द सीन वो बातें जो हॉल ऑफ फेम या फ्लैग एरिया या फिर ऐसे एक्सक्लूसिव एरियाज को जो पहली बार हम आपके साथ कवर करेंगे। तो हमारे साथ हमारे इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और आप महसूस भी करेंगे। तो हम आपको लेके चलते हैं अपनी इस सुहानी जर्नी पर। एवरीवन, आई एम एनो प्रीति स्वामी फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ डायरेक्टरेट। और जैसे कि हमने बताया था कि रिपब्लिक डे कैंप 2026 में बिहाइंड द सीन एपिसोड 1 में हम आपके पास लेके आए हैं एक वीडियो जो है हॉल ऑफ फेम से रिलेटेड। हॉल ऑफ फेम में क्यों कैडेट्स आना चाहते हैं, क्या वो देखते हैं, क्या वो सीखते हैं, इन सारी बातों को आइए कैडेट से ही सुनते हैं। जय हिंद। What's your name? My name is Junior Under Officer Devendra Singh Purohit. Okay. तो देवेंद्र, आप हैं कहाँ के? Ma'am, I'm originally from Rajasthan. I was Okay. born in Maharashtra and brought up in Bangalore. Oh great. तो आपसे ही पूछते हैं कि हॉल ऑफ फेम को अगर आपको बच्चों को समझाना है, ये बताना है, तो व्हाट इज हॉल ऑफ फेम? So, ma'am, Hall of Fame was established on 5th Jan 1994. Okay. And since its establishment, this hall has stood tall as the beacon of character, unity, and service among the youth. Okay. So each room encapsulates the essence of NCC, celebrating the rich legacy of courage, discipline, and excellence. So we have rooms such as the history. The first room is dedicated to the history of NCC, starting from 1970 all the way to 2026. Great. The subsequent room will be talking about the alumni. So there are various alumni. The today's leader were having some sort of an NCC experience within them. So that hall is dedicated to that. The third would be the army training, focusing on the more specific army related things. Subsequently, we have the naval training room, the air training room, and then lastly, we have a room that is dedicated to the YP, and also not only about the YP but also Ek Bharat Shresth Bharat and the Param Veer Sagar Yatra. That is an expedition that has been happening in Lakshadweep as well as in the Andaman and Nicobar. वाओ देवेंद्र, आपने इतने प्यारे तरीके से हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा ना कैप्चर मूवमेंट बता दिया है कि वो जरूर क्यूरियस होंगे कि इस पूरी वीडियो में है क्या। तो देवेंद्र, आपसे पर्सनल क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज योर लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज यू आर हेयर एंड लाइक आई थिंक यू आर गिविंग द फर्स्ट ब्रीफिंग टू द होल द डिग्निटरीज। सो व्हाट इज योर टेक अवे? So it has been a fascinating experience for me since I am the one who is welcoming all the dignitaries. So I will have to make sure that I set up a good impression on them so that they have that excitement to go in the hall. Great. At the same time, I've also come across the fact that NCC is not just a mere organization but a living legacy. So like I mentioned that we have an alumni room. So today's leader, so most of us are aspiring to be like them, but these leaders also had some of the other NCC experience within them. So I believe that NCC holistically develops the cadets. ओके ग्रेट। तो आइए चलते हैं हॉल ऑफ फेम के अंदर और देखते हैं हमारे अगले कैडेट क्या कहते हैं। जय हिंद मैम। जय हिंद। व्हाट्स योर नेम? कैडेट वारंट ऑफिसर एस्तर करवाल। Okay, so what is this actually area is? Can you please brief us? Yes ma'am. So this is the history room of the Hall of Fame. Okay, so एक छोटा सा क्वेश्चन पर्सनल पूछना चाहती हूँ क्योंकि ये हिस्ट्री रूम है और आप अपने सारे डिग्निटरीज को ब्रीफ भी करती होंगी इसके बारे में। What is your take away from here? Yes ma'am. So this goes back to the 30 of our camp when we had the selection for the briefers. Yes. And honestly back then I had no idea that this opportunity had so much in store for me. Okay. But today I proudly stand here saying that this has been the best thing happened because this is the very place that gave me the exposure that every cadet wishes for. Okay. And having a one-on-one briefing with such great people and VIPs has been really special. And you feel proud of it every Definitely, moment, ma'am. yeah? Especially when some dignitary after the briefing shakes your hand or compliments you, that always stays for you. So you're stays with taking you all forever. those things with you. as a Definitely, memory, ma'am. cherished memory. Very All special very best. memories. Yes, we have one more cadet here. जय मैम। जय हिंद। What's your name? मैम कैडेट शिवाली शर्मा। ओके शिवानी, तो आप बताइए कि आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस मूवमेंट है जब आप इतने डिग्निटरी से मिलते हैं या उनको बताते हैं, प्लीज। मैम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जब भी हम कई अपने जो भी हमारे डिग्निटरीज आते हैं उनसे मिलते हैं, एक एक्सपीरियंस ये रहता है कि बहुत सारे कैडेट आते हैं यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए, तो उन सब में आप सेलेक्ट हो। एक खास बन के आप उनके सामने आ रहे हो तो आपके चीज़ में माइंड में एक ही चीज़ आती है कि जब आप सोचते हो कि इतने सारे लोगों को डर जाते हो कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, बट स्टिल यू आर डूइंग दैट। सो जब आप ये चीज़ सोचते हो कि जब आपको लगता है गिव अप इज ईजियर एंड स्टिल यू आर डूइंग नॉट आई डोंट वांट टू गिव अप, देन यू रियली विल। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी
और जब भी कोई आता है मेरे सामने एक खुशी रहती है कि या आई एम डूइंग इट। Yes. मैंने उस वक्त गिव अप नहीं किया था और अब मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हूँ। ओके, ग्रेट। जय मैम, जय हिंद। तो ये रूम है मैम ये रूम है एल्यूमिनाई रूम, Okay. जिसमें हमारे एल्यूमिनाइज है उनके पिक्चर्स लगाए हुए हैं। ये जो है यहाँ पे सुवीनियर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो आपसे मैं पर्सनल क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ, इस रूम में जब आप रहते हैं, खड़े होते हैं, इसको महसूस करते हैं, सो व्हाट इज योर फीलिंग? मैम it is truly an enriching experience for me to be in the prefer of the Hall of Fame। और मैम जो डिग्निटरीज को हम टीवी पर देखते थे और आज हमें ये मौका मिल रहा है कि हम उन्हें ब्रीफ करें, जो हमने सोचा भी नहीं था कि हम उनसे फेस टू फेस मिलेंगे, पर आज हम उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं। और सबसे प्राउडफुल मोमेंट तो तब होता है कि जब हम घर पे कॉल करके बताते हैं कि मम्मी आई गॉट सिलेक्टेड टू ब्रीफ द रक्षा मंत्री। वाह, ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट यू? जय मैम, जय हिंद। Ma'am, to be a part of this Hall of Fame ceremony has always been a proud memory for me. Okay. The first time that I got a chance to be here in this room, I was equally excited and nervous at the same time because I have never personally got a chance or opportunity to brief dignitaries Okay. such as the Vice President of India. So it was a really enriching experience. The best thing that I learned from here is the art of handling pressure. Because when you're giving the briefing to such dignitaries, you are under pressure, and to attend that and give the briefing in a good way, and then the compliments that we have got from the VIPs who have been here is the most enriching experience that I've ever had. So I just wanted to ask you, what is the mantra of coming out of all those pressures? Ma'am, the biggest mantra will be the KP sir's mantra, because the way he has comforted is practice. Yes. He has always been telling us this, that practice makes a man perfect, and being a part of this team, I have learned that. Great. जय हिंद। So this room is basically army room, army cadets हमारे साथ हैं. Right. So please tell us कि इस room में आपने क्या सीखा इतने दिनों से? Being a part of Hall of Fame is very humbling and honoring, and specializing the army cadet as we both are from the army. This tanks and machine guns that are used in armed forces, Yes. it gives us goosebumps when I remember with pride the sacrifice of our brave ones. And ma'am, there are so many various activities that has been done by army cadets in NCC. Their contribution depicts their solemn commitment to dedication and determination. So now you are more proud to be an army cadet. Yes. And what about you, Shakti? Ma'am, as told by Vaishnavi, these tanks, artillery guns, and ma'am, these things are more than a motivation for me. Okay. Whenever I see them, it just motivates me for joining the army. When you look at these mountains, it tells about the Everest summit, Yes. the NCC cadets, their courage, their bravery. It also motivates you to do these tasks. If I were to tell you, look at these soldiers traveling from the helicopters. Yes. It just motivates you to do these tasks, do these risky tasks. And also, ma'am, if I were to talk about this model, it talks about the world record that was held in 2016. It was the largest women contingent by a single country to scale the Mount Everest. So, right now. तो मैं सेक्शन ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ से इस एवरेस्ट को, इस मॉडल को देख के आप क्या लेके जा रहे हो अपने साथ में? मैम, जब भी इस मॉडल को मैं देखता हूँ, मैं बस ये सोचता हूँ कि जब इंसान उस ऊंचाई पर पहुँच गया, इंसान उस ऊंचाई पर पहुँचने के बाद वो थमना नहीं चाहता है, वो और ऊपर जाना चाहता है, और ऊपर उठना चाहता है, और ऊंचाई पर जाना चाहता है। आप भी उसी ऊंचाई को अपने साथ लेके जा रहे हैं। मैम, मैं कभी नहीं थमूंगा और आगे ही बढ़ता जाऊंगा। ग्रेट। Jai ma'am. जय हिंद। What's your name? I'm Cadet Captain Nandini Nirsinara ma'am. ओके, तो आप बताइए इस नेवी के इस एरिया में आप जब ब्रीफ करते हैं सबको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फीलिंग्स हम जानना चाहते हैं, और इस एरिया में क्या स्पेशल है? तो सबसे पहले मैम, जब मैंने 4 बार ब्रीफ किया, 2 बार तो चीफ्स को ब्रीफ किया और बड़े डिफेंस सेक्रेटरी को और हमारे जो आर्मी कमांडर थे उन्हें भी, तो उस टाइम पे जो फीलिंग आती थी कि इस रूम ने मुझे ये सिखाया कि ये मेरा एक्चुअली दूसरा घर बन चुका है, एंड द फैक्ट दैट आई शुड बी स्केयर्ड, दिस इज माय रूम। तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग एक ज़्यादा बढ़ गई अबाउट नेवी ऑल्सो, तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग मुझे फील हुई। दूसरी बात जो आपने कहा कि और यहाँ से मैंने क्या सीखा, तो यही कि आपको हमेशा खुद पे भरोसा होना चाहिए, और आप जिन रूट से आ रहे हो उस चीज़ का आपको भरोसा होना चाहिए। क्या बात है, बहुत प्यारे तरीके से आपने समझाया। हम सुनना चाहते हैं अपने दूसरे कैडेट नेवी के, क्या आप यहाँ से सीख रहे हैं और क्या आपका टेक अवे है? So basically, when I came to this room, so I was told that you have to depict this as a story, like what you have learned, what you experienced. So whenever I enter this room, I have the feeling that I'm the boss of this room belongs to me. Whenever we have this feeling, we
expanding, how we started and how we are flourishing. Like we have IRIS Academy model, all these models behind me have been constructed by our own cadets. So this is how we are motivating. So एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, आप नेवी के कैडेट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? So my message to the naval cadets should be like, there is no looking back. Just keep moving forward. Just like how Coxman is directing you, just keep pulling the boat harder and harder. You will get the way to the end. Thank you. Wow, what a beautiful message you have. Thank you so much. Thank you, ma'am. Jai ma'am. Jai Hind. What's your name? Cadet Sergeant Ayush Pathak. Okay, tell me, what is this room special about? This room is the air room. So here we have various static models of aircraft. Then a life-size mannequin over here wearing a G-suit and a fighter pilot's uniform. And this was showcase many adventure activities that are participated by the air cadets. Okay, so if I want to ask you a simple question, कि यहाँ पे रहते हुए कितने दिन से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और ब्रीफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जज्बा जो आपके अंदर आया, इसको यहाँ पे महसूस करा, we want to have that feeling from you. Yes. So I have briefed the Vice President, our motivation, the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh. Okay. So this has been a great motivation for me, and tomorrow I will be briefing the Raksha Mantri. Okay. So briefing all these dignitaries has created me a boost and a motivation that with your confidence and the jazba you have in yourself, you can brief anyone and you can face the whole world. Oh, great, great. So, and what about you, cadet? मैं फ्लाइट कैडेट रुद्राक्ष राठौर। मैंने भी यहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी एंड एडीजीज एंड मेन कमोडोर्स और कैप्टन्स को ब्रीफिंग दी है। उनको ब्रीफिंग देते वक्त समझ आया कि हाँ, जिस प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हैं यहाँ पर हमने बहुत चीज़ें सीखी तो है ही हैं, पर जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों के सामने खड़े होने के लिए, और ये जो अनुभव रहा है ये बहुत उत्तम रहा है। तो आप अपने कैडेट्स को, जो एयर विंग के कैडेट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि वो आपको सुन रहे हैं इस समय? जो एयर विंग कैडेट्स यहाँ पर आरडीसी पहुँचेंगे, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि वो सीधा हॉल ऑफ फेम के लिए ट्राई करें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ पर आपने फ्रेंड्स तो बनाए हैं जैसे बाकी इवेंट्स में आपने बनाए होंगे, बट यहाँ पर आपको आपके एयर विंग के बारे में, नेवल विंग के बारे में, वाईपी सेक्शन और जितने भी यहाँ पे रूम्स हैं उनके बारे में, अलमनाई रूम, इन सारे के बारे में जानकारी मिली है। इससे पता लगा एनसीसी कहाँ तक बियॉन्ड एवरीथिंग कहाँ तक फैली हुई है और क्या इसने अभी तक दिया है, क्या क्या किया है। फॉर एग्जांपल हमारा जो एयर रूम है इसमें हमारे यहाँ पर स्कूबा डाइविंग, माउंट एवरेस्ट का समिट, एंड कायाकिंग, फुटबॉल एक्टिविटीज, ये बहुत सारी डिस्प्ले की हैं। हमें पता लगा है कि जहाँ एनसीसी को हम सिर्फ और सिर्फ ड्रिल या फिर डिसिप्लिन बेसिक इन चीज़ों से एसोसिएट करते हैं, यहाँ पे हमारा कैरेक्टर भी डेवलप होता है और साथ में हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। फॉर एग्जांपल हॉर्स राइडिंग, जो एक आम आदमी को ऐसे नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत एक हाई क्लास बैकग्राउंड से होना पड़ता है, तब जाके आपको हॉर्स राइडिंग जैसी कोई एक्टिविटी में तो पार्टिसिपेट आप इधर इस रूम में रहकर बहुत मोटिवेटेड हो गए अच्छा। हैं, और ये मोटिवेशन आप अपने शहर भी लेके जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? I'm Captain Rudraj. Okay, so what is this area special about? Ma'am, this section is called as the Youth Exchange Program section of the Hall of Fame, Okay. where we talk about the Youth Exchange Program, where cadets from 21 this year, cadets from 21 countries will be the part of RDC program. Okay. तो What- आपकी क्या फीलिंग है इसके लिए कि आप भी इसका पार्ट होना चाहते हैं? कैसे पार्टिसिपेट करेंगे इस चीज में? अगर आप नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हो तो वाईपी आपके लिए वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि आप सच कहा जाए तो आप सरकारी पैसे पे बाहर के देश घूमेंगे और आप यूल गो एज ए यूथ एम्बेसडर। अपने देश का प्रतिनिधित्व आप सरकार की तरफ से ही करेंगे। और ये पर्टिकुलर सेक्शन मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आएगा आई वुड सजेस्ट देम कि हॉल ऑफ फेम पहली बार है, क्योंकि हॉल ऑफ फेम में जो वन ऑन वन इंटरेक्शंस होते हैं, आई शुक हैंड्स विद द चीफ ऑफ एयर स्टाफ, Okay. DGNCC, I saluted, we exchanged salutes with the Vice President of India. इससे बड़ी अपॉर्चुनिटीज ये हॉल ऑफ फेम छोड़ के आई डोंट थिंक कि कहीं और मिले। Okay. तो आप एक अपना मैसेज जो यूथ को देना चाहते हैं अपनी तरफ से, what is the message for the youth related to this youth exchange program? Related to this youth exchange program, ma'am, be always curious, be in the mood where you want to know about each and everything. अगर किसी चीज़ के बारे में पता भी ना हो तो पता कर लो, जिनसे पता है उनसे दोस्ती हो जाएगी। Okay. चीजें बढ़ती जाएंगी। So I think we have one more cadet. What's your name? Jai ma'am. Jai Hind. What's Your your name? cadet Ayush said. Okay. So Ayush, आप बताओ कि आपका टेक अवे क्या रहा इस वाईपी के इस एरिया में? A cultural exchange. I Okay. think I'm from Uttar Pradesh actually, Okay. but I hail from Pune. Okay. So
यूपी और पुणे, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. Okay. So both are different. वहाँ पे चाट मिलती है, यहाँ बड़ा पाव. So cultural exchange होता है. Okay. So I love a lot about that. Think of a take away. अब वही टेक अवे है कि यहाँ पे आप अपने बैरक में भी जब होते हैं तो यही कल्चर एक्सचेंज वाली बातें वहाँ पे भी होती Yes, हैं, ma'am. है ना? सो अभी मैं आपसे पूछूंगी कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम से रिलेटेड आपका क्या टेक अवे है कि इस रूम में रह के आपने क्या फील किया, वो फीलिंग्स क्या है? अभी 2 दिन पहले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के जो दूसरे कंट्री से लोग आए हैं, वो आए थे यहाँ पे. सो उनसे बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, उनके कल्चर के बारे में जानना, आई थिंक वो द बेस्ट थिंग थी जो मैंने यहाँ पे सीखी. और यही आप अपने साथ लेके जा रहे हैं. यस मैम. थैंक यू सो मच. तो देखा आपने कि हमने किस तरह से हॉल ऑफ फेम के बारे में आपको बहुत प्यारी इन्फॉर्मेशन दी है और आगे हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आप कुछ बहुत कुछ सीखेंगे, देखेंगे और महसूस करेंगे. तो अगली वीडियो होगी हमारी फ्लैग एरिया की, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए. थैंक यू. जय हिंद.